کہ برائلر کی طلب کی نسبت رسم میں بہتری، مرغی کا گوشت 5 روپے فی کلو سستا ہو گیا۔ فی کلو گوشت کی قیمت 591 روپے مقرر ہے۔ ہول سیل میں زندہ برائلر 394 روپے کلو بیچی جا رہی ہے۔ انڈوں کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ 4 روپے اضافے سے فی درجن انڈوں کی قیمت 290 روپے ہو چکی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ برائلر کی طلب کی نسبت رسد میں بہتری آئی ہے۔ مرغی کا گوشت 5 روپے فی کلو سستا ہو گیا ہے۔ فی کلو گوشت کی قیمت 591 روپے مقرر ہے۔ ہول سیل میں زندہ برائلر 394 روپے کلو بیچی جا رہی ہے۔ انڈوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ 4 روپے اضافے سے فی درجن انڈوں کی قیمت 290 روپے ہو چکی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتا رہے ہیں کہ برائلر کی طلب کی نسبت رسد میں بہتری آئی ہے۔ مرغی کا گوشت 5 روپے فی کلو سستا ہو گیا ہے۔ فی کلو گوشت کی قیمت 591 روپے مقرر ہے۔ ہول سیل میں زندہ برائلر 394 روپے کلو بیچی جا رہی ہے۔ انڈوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، برائلر کی قیمتوں میں آج جو ہے وہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ برائلر کی قیمتیں گزشتہ کئی ہفتوں سے عدم استحکام کا شکار تھیں۔ تاہم آج جو ہے برائلر گوشت کی قیمت میں 5 روپے فی کلو تک کمی کی گئی ہے۔ 596 سے سستا کر کے برائلر گوشت جو ہے 591 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے سرکاری ریٹ میں۔ تاہم ساتھی برائلر اب بھی 650 روپے فی کلو تک مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 3 روپے جو ہے وہ کمی کی گئی ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 380 روپے، جبکہ ہول سیل زندہ برائلر یا سپلائی ریٹ جو ہے 394 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے، اور جو پرچون بازاروں کے لیے زندہ برائلر ہے وہ 408 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ تاہم انڈوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والا اضافہ جو ہے وہ دگنا کر دیا گیا ہے۔ پہلے 2 روپے فی درجن تک روزانہ قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا تھا، تاہم آج 4 روپے فی درجن کا اضافہ کیا گیا اور 286 سے قیمت بڑھا کر 290 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹوں میں انڈوں کی پیٹی جو ہے وہ 8,580 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے، اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پولٹری مصنوعات کی قیمتیں جو ہے وہ اب بھی عوامی قوت خرید سے باہر ہیں، اور جو فارمی انڈے ہیں وہ دن بدن مہنگے کیے جا رہے ہیں۔ موسم گرما میں عمومی طور پر انڈوں کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے، تاہم اس بار جو ہے وہ اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملک کو نقصان پہنچانے والوں اور سپورٹرز کا احتساب ہونا چاہیے۔ مہنگے بجلی کے بل عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی طرح اب عوام کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی ہمارا بڑا امتحان ہے۔ مسلم لیگ نون کے ہمیشہ ملک کو مشکلات سے راستہ نکالنا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ قیادت کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ بجلی صارفین کو 3 ماہ کے لیے ریلیف دیا۔ ملک کے تمام مسائل کے حل کے لیے ایک جامع معاشی ایجنڈا بھی تیار کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل کے اجلاس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ملک کو نقصان پہنچانے والوں اور سپورٹرز کا احتساب ہونا چاہیے۔ مہنگے بجلی کے بل عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی طرح اب عوام کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی ہمارا بڑا امتحان ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ملک کو مشکلات سے راستہ نکالا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ قیادت کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ بجلی صارفین کو 3 ماہ کے لیے ریلیف دیا۔ مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس میں سیاسی معاشی پارٹی معاملات سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو فیض حمید کیس اور اس سے متعلق کوئی بھی بیان دینے سے متعلق انتہائی احتیاط برتنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ میاں نواز شریف نے کہا جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا یا ایسے افراد کو سپورٹ کیا ان کا احتساب ہونا ضروری ہے، جس پر شہباز شریف نے کہا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، مل کر فیصلے کر رہے ہیں۔ عوام کو بجلی کے مہنگے بلوں میں ریلیف دینے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی صدر کو قومی معاشی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا ملکی مسائل کے حل کے لیے ایک جامع معاشی ایجنڈا تیار کر لیا ہے۔ 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ بجلی صارفین کو 3 ماہ کے لیے ریلیف دیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ترقیاتی بجٹ سے 50 ارب روپے کی کٹوتی کر کے 86% عوام کو ریلیف دیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، پارٹی کے مرکزی رہنما اور دیگر عہدیدار بھی شریک ہوئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کے پاس بہت آپشن تھے، لیکن انہوں نے کئی بار واضح کہا کہ متعدد ملازمت میں مزید توسیع نہیں چاہتے۔ خواجہ آصف زیر ایک آدمی ہیں، لیکن کچھ باتیں کرتے ہوئے سیاق و سباق سے ہٹ جاتے ہیں۔ جنرل فیض کے معاملے کا مجھے علم نہیں، ہر ادارے کے اپنے ڈسپلن ہوتے ہیں۔ تفصیلات لیاقت علی کی رپورٹ میں۔
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि ख्वाजा आसिफ ज़ीरक आदमी हैं, लेकिन कुछ बातें करते हुए सियाक व सबाक से हट गए हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सेशन में जनरल बाजवा ने वादे कर दिया था कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। जनरल फैज़ साहब का जो भी मामला है, क्योंकि देखें ये एक बड़ा इस इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स हैं। अब जब तक कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी संगीन ना हो, जिसके कोई ऐसे शवाहिद ना हो, तो इतने सीनियर लेवल पर कभी इस तरह की बात हमने इससे पहले को मुशाहिदे में नहीं है। जनरल फैज़ के हवाले से स्पीकर का कहना था कि मुझे इसका इल्म नहीं, हर इदारे के अपने डिसिप्लिन होते हैं। जनरल फैज़ के माली मामलात और पोस्ट रिटायरमेंट पर हर कोई अपने मतलब के नताइज निकाल रहा है। उसके मुतल्लिक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। हर कोई अपने अपने मकसद के तहत, अपने मतलब के तहत इसमें से कुछ नताइज निकालने की और ख्वाहिश के ताबिक नताइज निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम इस अपने अफवाज पाकिस्तान के अदारे की तारीख से वाकिफ़ हैं और उनके इस कोर्ट मार्शल्स के प्रोसीजर से जो तफसीलात आज तक हमने पढ़ रखी हैं, सुन रखी हैं, उसमें हर चीज़ बड़ी मेरिटोरियस होगी और उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा जिसका कोई और एंगल हो। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इखलाक बाजवा और वदूद मुश्ताक के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए दोनों सहाफ़ियों के लवाहिकीन के लिए माली मुआवनत और इखलाक बाजवा की बेटे की मुलाजमत का ऐलान भी किया। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का ISI के साबिक़ सरबराह की गिरफ्तारी के हवाले से बात करने से गुरेज किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्पीकर मलिक अहमद खान मेरे छोटे भाई और बेटे हैं, मैं इनके मशवरे से बात करूँगा। मैं ये इसका जवाब जो है ना, मैं मलिक साहब मेरे भाई हैं, बेटे हैं, तो मैं उनसे मशवरा करके मैं नई कंट्रोवर्सी नहीं। सर आज के इजलास में क्या हुआ है? सर आज के इजलास में जो मुल्क में गिरफ्तारी हुई है उस हवाले से कोई बात हुई है? जो मुल्क में गिरफ्तारी हुई है उस हवाले से उस हवाले से नो कमेंट, बात ही नहीं। अच्छा, ख्वाजा साहब कह रहे हैं हुकूमत गिर रही है, आपके मुखालफिन। यार उन्होंने अपने आप को हौसला भी देना होता है ना। वज़ीर आज़म जल्द कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में 5 साला माशी प्लान का ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतार तारड़ का कहना है कि आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। इस्लाहात से मईशत में बेहतरी आएगी। खुद एहतसाबी का अमल हर इदारे को अपनाना चाहिए। मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करने वाले तमाम अफराद शिकंजे में आएंगे। तरक्की करनी है, इसकी मईशत ने स्टेबलाइज होना है, बहाल होना है। जैसे हम एक बहाली के सफ़र की तरफ चल चुके हैं, रुपी स्टेबल हो गया है डॉलर के मुकाबले में, अच्छी खबरें आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल में भी कमी हुई। वज़ीर आज़म साहब ने बिजली की कीमतों में जो कहा कि हम इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश करेंगे कि उसमें कमी वाक़ई की जाए। तो ये जो एक इंतशारी टोले ने इस मुल्क में किया है उसका एहतसाब भी ज़रूरी है। और अभी मज़ीद तहकीकात भी की जाएंगी। जो 3 अफसरान आज गिरफ़्तार हुए हैं उनके अलावा मज़ीद भी गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो लगता है देखने में आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, तो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इंतशारी टोले के मातहत और इंतशारी टोले का जो रिंग लीडर है बानी चेयरमैन PTI, उसकी ख्वाहिश पे अपनी हलफ को भी उन्होंने नहीं देखा, आइन को भी नहीं देखा, कानून को भी नहीं देखा और सियासत में भरपूर हिस्सा लेकर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तो इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं जश्न आज़ादी के मौके पर इनकी जमात के खिलाफ नारवा सलूक बरता गया। दर्जनों कारकुनों को हिरासत में लिया गया। अरकान असम्बली पर मुकदमा दर्ज हुए। जल्द बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। लाहौर प्रेस क्लब में अरकान पंजाब असम्बली और तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने कहा कि हुकूमत ने यौम आज़ादी पर उनकी जमात के साथ नारवा सलूक बरता। जबर का ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। गुज़िश्ता 16 माह से उनकी जमात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ सिर्फ 9 मई की शफाफ तहकीकात चाहती है। कल जिस तरह 14 अगस्त 77 जो हमारी आज़ादी की समझ लें तकरीबात थी वो कल शुरू हुई और हमारे ऊपर इस तरह लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूजा कश्मीर में फिर रही है और हमारी जो पुलिस थी वो इंडियन पुलिस हमें नज़र आ रही थी। जिस तरह जुल्म इन्होंने शुरू किया 13 अगस्त की शाम से इस वक्त तक वो जुल्म जारी है।
अपोजिशन लीडर का मजीद कहना था कि पार्लियामेंट में शख्सियात की बुनियाद पर कानून साजी की जा रही है जो जमहूरियत के लिए शदीद नुकसानदेह होगी। कैमरामैन अदनान के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। पीटीआई के सीनियर महमूद अजहर ने पंजाब की सदारत छोड़ दी। तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत भी मुस्ताफ़ी हो गई। चौधरी असगर गुजर ने पार्टी सदारत छोड़ दी। क़यादत के बाद फैसलों से इख्तलाफ की बिना पर पार्टी जिम्मेदारियों से इस्तीफ़ा दे दिया। हमाद अजहर ने अपने फैसले बारे कहा कि बदकिस्मती से इनकी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना ही कोई डील की। मेरी नकलो हरकत पर बहुत सख्ती है और मैं अडियाला नहीं जा सकता। पंजाब की तंजीम में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिसमें मेरी राय शामिल नहीं थी और ना ही रजामंदी। इनमें अक्सर फैसले ऐसे भी थे जिन पर मेरिट के बजाय लॉबिंग और बानी पीटीआई तक महदूद रसाई और एक तरफा मालूमात पहुंचाई गई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी असगर गुजर ने भी पार्टी सदारत छोड़ दी। उधर तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हाफिज जशान रशीद ने भी जिम्मेदारियों से इस्तीफ़ा दिया। चौधरी असगर गुजर का कहना है कि पार्टी कारकुनों का मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन ने मुलाकात की। पंजाब में सरमायाकारी और टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। सूबाई वजीर सनअत तजारत ने गवर्नर पंजाब को सूबे में सरमायाकारी और टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के नतीजा खेज इक़दामात उठाए गए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की सरमायाकारी भी गहरी दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे हैं। चैप्टा के इदारों की अपग्रेडेशन से फ़नी तालीम से मयार में बेहतरी आएगी। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि चीन की सोलर एनर्जी की कंपनी पंजाब में सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा रही है। जश्न आज़ादी पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग समेत कानूनी शिकंजे पर पंजाब पुलिस का सख्त क्रैकडाउन। लाहौर समेत सूबा भर में 514 कानून शिकन अनासर गिरफ्तार, 461 मुकदमा दर्ज किए। पुलिस के क्रैकडाउन के बावजूद 14 अगस्त को पंजाब भर में 1898 हादसात में 16 जांबाग जबकि 2142 शहरी जख्मी हुए। जश्न आज़ादी पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग समेत कानून की मुख्तलिफ खिलाफ वर्दियों पर पंजाब पुलिस का सख्त क्रैकडाउन। लाहौर समेत सूबे भर में 514 कानून शिकन अनासर गिरफ्तार, 461 मुकदमात दर्ज। वन व्हीलिंग पर 415 मुलजिमान गिरफ्तार, 375 मुकदमात दर्ज किए गए। हवाई फायरिंग पर 29 अफराद पकड़े गए, 24 मुकदमात भी दर्ज। काइट फ्लाइंग पर 23 मुलजिमान गिरफ्तार, 26 मुकदमात बनाए गए। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सिर्फ लाहौर में वन व्हीलिंग पर 174, हवाई फायरिंग पर 13 जबकि पतंगबाजी पर 7 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। डॉल्फिन स्क्वाड का 13 और 14 अगस्त को मिडनाइट ऑपरेशन। डॉल्फिन स्क्वाड ने नक्शे अमन का बायस बनने वाले 52 अनासर को गिरफ्तार किया। शहर भर से वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वाले 88, हवाई फायरिंग करने वाले 4 मुलजिमान को भी हिरासत में लिया गया। दूसरी जानब तर्जमान रेस्क्यू पंजाब का कहना है कि 14 अगस्त को पंजाब भर में 1898 हादसात हुए जिनमें 16 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस पुल के करीब मोटरसाइकिलें आपस में टकराने से वन व्हीलर मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। जाँ बहक होने वाले इशरा के रिहायशी हुमायूं की मोटरसाइकिल नहर में जा गिरी थी।